So you have to come here at this pilot station. कोई और सब्जेक्ट पढ़ेगा हम उसको रोक देगा यहाँ DCL पेपर फेल करके ये रुकेगा DCL श्योर फेल हो जाएगा पेपर करेक्ट नहीं होगा तो फेल हो जाएगा 99 अभी तो फेल हो जाएगा तो पैरेलल लाया जरूरत से तो जब पैसेज बनाएगा you may have shallows here ठीक है so when you are making coastal passage try to put the passage such a way that your legs are parallel to the coastline ठीक है because you all have coastal charts no river passage so always try to put parallel to the coastline उसके लिए एक extra way point डालना पड़ेगा तो डाल देना ठीक है so now if you are making this passage so parallel to your coastline maybe you have shallows here ठीक है यहाँ पे suppose एक shallow passage यहाँ पे एक shallow passage है तो आप क्या करेंगे this is shallow you know यहाँ पे एक shallow है तो क्या करेगा you cannot go parallel to the coastline no so what you do you go up little bit like this and then yeah taking again with all your this one and then you go like this and again हमको इसे बोर्ड में बना रहा है you see because the question will be on draft so you calculate that what is the minimum depth required under your keel so depth मैंने आपको बताया था your own draft plus UKC ठीक है MDR कैलकुलेशन होना चाहिए क्या होना चाहिए स्पॉट पे तो लगेगा हाँ MDR कैलकुलेशन सब बताएगा मैं ठीक है सपोज यू आर गोइंग लाइक दिस अवॉइडिंग ऑल ठीक है तो ये लेग्स देख लेना और योर पैसेज में हैव सम यू नो normally all your charts are for higher latitudes so they can give you gale force when there is a gale force stormy weather keep away from the coast but इतना अवे नहीं कि एकदम दूसरी तरफ से चले जाओ ठीक है try to be little bit away from 50 miles at least ठीक है don't get to the coast so this is one and this is one so these are called what these are called your waypoints ठीक है so when you mark the waypoints and in this case draw the course line nice diagram course line has to be drawn parallel to the course so you draw the course line like this and this कर देगा yes sir big arrow अभी सपोज ये कोर्स है तुम्हारा check with the compass rule you don't have to be very accurate no one is going to put the parallel skill there you have to be accurate in your chart work other 2 3 4 क्वेश्चन जो भी है उसमें accurate हो इसमें not in you can go ठीक है so suppose this is 350 then right थोड़ा बहुत 350 degrees to you don't have to be very accurate with the distance ले लो जो भी डिस्टेंस ठीक है so say it is 20 miles clear so this is 270 and say let this say be 120 miles clear हम लोग देखेगा भी नहीं 120 है कि 20 है खाली देखना है कोर्स और डिस्टेंस है ये वाला जो है 290 और 280 तो ये 283 भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं राइट you understood no one will check into say again 120 miles ये वाला हो गया से 300 into 700 ठीक है इतना कोर्स लग गया अब लिख रहा है वे पॉइंट नंबर सो दिस इज योर फर्स्ट वे पॉइंट 01 दिस इज वे पॉइंट 2
waypoint 3. This is waypoint 4. Don't write over your course, please. And this is your waypoint 5. Say this is latitude, longitude, roughly. Just move your parallel और रख दो सीधा. रोज से लाने की भी जरूरत नहीं है. उसका सीधा सीधे एक पैरेलल ऑफ मेरिडियन से पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड का देख लो कितना है. सपोज इसका लैटिट्यूड सपोज इसका है तुम्हारा 20 डिग्री नॉर्थ एंड से 100 डिग्री ईस्ट. करेक्ट. इसका हो गया सपोज 25 डिग्री 21 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. और तुम्हारा इधर आएगा और 91 डिग्री 091. ठीक है. मिनट्स में लिखना है तो लिख देना. इसका भी वैसे ही हो जाएगा. This is 22 डिग्री नॉर्थ. You understood? Let's start with 50. One chart 50 के रेंज. 51 डिग्री नॉर्थ. So 52 डिग्री नॉर्थ. कॉमा मिनट्स में भी लिख सकता. ठीक है. एंड 094 डिग्री ईस्ट. क्लियर. इसका भी वैसे लिख देना. वे पॉइंट सॉरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. सो दिस इज 52 डिग्री नॉर्थ. लॉन्गिट्यूड हो गया 091 डिग्री ईस्ट. ओके. से दिस इज आल्सो चलो 56 डिग्री नॉर्थ. लॉन्गिट्यूड से 09 1.5 09 डिग्रीज 30 मिनट्स. नहीं थोड़ा इधर ही है ना. 92 डिग्री और 91 डिग्री 15 मिनट्स. 15 मिनट्स कम होगा. इधर 90 घटेगा. 90 30 90 डिग्री आ जाओ. समझा क्या बोला. अब बात करना DTG. सो यहाँ पे फर्स्ट DTG क्या होगा. हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस. कैन यू ऐड अप. सो 20 120 इसको 20 240 हाँ इसको 50 माइल्स कितना हो गया. 50 प्लस 120 170 390. तो यहाँ पे क्या होगा. डिस्टेंस टू गो DTG 390 माइल्स लेस 100. तो यहाँ पे DTG क्या होगा. DTG विल बी कितना हो जाएगा 290 माइल्स. करेक्ट. इससे 120 माइनस करो. यहाँ का DTG क्या होगा 170. DTG 170. यहाँ पे क्या होगा DTG 50. DTG 50. यहाँ DTG लिखेंगे 0 you don't have to write. What you can write DTG 50. समझ में आया क्या बोला. So now no go area. Suppose this is shallow, so you mark this as like this. So this is no go area. No go. ठीक है. This is shallow. Isn't it? Don't obscure this one. So no go. Suppose we have a shallow here. This is all no. एक कौन मेंबर कर रहा है. तुमको अब सर्टिफिकेट नहीं देगा. इधर आगे बैठो. इधर आगे बैठो. इधर आगे बैठो. तुम ऑलरेडी रडार पे है मेरा. इधर आओ. तुम्हारा राइटिंग दिखाओ तो. अब कहाँ से देगा एग्जाम. एग्जाम कहाँ से देगा. चैट का कोलकाता से. राइटिंग देगा ना. अब तो नहीं देगा. ठीक है. समझा. अब देखो पैरेलल इंडेक्सिंग दिखाना. पैरेलल इंडेक्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ डू यू मार्क पैरेलल इंडेक्सिंग.
व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैरेलल इंडेक्सिंग भी बता देंगे। तो ये तुम्हारा इसको सपोज इससे पैरेलल इंडेक्सिंग करना है तो यहाँ पे दिस इज रडार कॉन्स्पिशियस फ्लुएंट, दीज आर ऑल these you have to mark, this will be picked up by the radar very well, you know. So you can just circle this one like this and you can write this ऐसे करके radar conspicuous point, ठीक है। तो इससे पैरेलल इंडेक्सिंग करना है तो इसको सिर्फ ऐसे करके ऐसे शिफ्ट करना, अपना ट्रू कोर्स टाइम लगा देना एज पे, ठीक है। and then you measure this distance perpendicular to your course from the point of tangency this, so you see how much is the value. So say this is say 4 miles, pi 4 miles. So we have to use, when you are using radar, what is this course, this true course you have to make good, no? Correct. So you put a pi, you know how to put a pi radar course kya? Either by floating VRM and EBL, or you can use the PI mode, PI का options, and you just set that, you know, parallel to your course, कर्सर घुमा के तुम अपना PI को सीधा कर लो अपने कोर्स के बराबर, और white कर लो, ठीक है, white कर लो range, और you set for 4 miles. तो अब क्या है, तुम suppose course में good ये कर रहा है, heading can be anything, you understood? Suppose you are here and your heading can be anything, you understood? But your course made good is like this. You understood? Because you have to make good the true course. True course is the safest course to make good. So you make the, so जब तुम इस पे आएगा तो PI क्या दिखाएगा? ये जो लाइन है will be exactly on top of the, जहाँ से रेफरेंस लिया है तुम उसके ऊपर है। Suppose आपका कोर्स थोड़ा इधर ड्रिफ्ट हो गया तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है this will come within the PI. PI उस तरफ चला जाएगा, PI will go more north, मतलब if you drift north, if you are not making good course, कितना make good करना है 280, suppose तुम 278 कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो तुमने मार्क किया जिससे PI, तुम्हारा PI का पोजीशन इधर चलाएगा। So you can see the object has come in between you and your PI. It means you have to correct your course, you have to go little bit more south. So अगर तुमको 275 स्टेयर करके 280 मिला, then you have to 282 मिल रहा है तो you have to steer 2 थोड़ा और कम करना है, 273 स्टेयर करना था कि आपको 280 मिले, या और थोड़ा ज्यादा ही करना था कि आप करेक्ट कर लो, कम बैक टू द ओरिजिनल कोर्स लाइन। समझा क्या बोला? सो पीआई पैरेलल इंडेक्स, क्लियर बेयरिंग, सपोज द क्लियरिंग ऑफ बेयरिंग, क्लियर बेयरिंग इज गॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे तुम मार सकते हो दैट इफ यू आर ऑल्टरिंग दिस, व्हाट इज द रेंज एंड बेयरिंग, दिस इज नॉट अ क्लियर बेयरिंग, सपोज दिस इज आल्सो रडार कॉन्स्पिशियस पोजीशन, ठीक है, रडार कॉन्स्पिशियस, radar conspicuous. So clearing means at what will be the bearing of this point when you arrive to the alteration. Clear? Understood? Or you know that आपको बताया था ना पैरेलल इंडेक्सिंग का, आपका VRM का याद है ना, जब वे पॉइंट डिस्कस कौन पढ़ाया तुम लोग बेजी को? ROTM पढ़ाया, ठीक है। So in this case, wheel over position adjust किया था, correct? तो wheel over position आपको, तो for example, okay, ये clear bearing कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, clear bearing is got a different concept, ठीक है? तो suppose तुमको at least you take a reference bearing, sir, what will be the bearing of this lighthouse, say 350 degree true. When you are going to, you are arrived at altar, the reference, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, wheel over position मार्क करना, कैसे मार्क करना wheel over position, ये वाला कोर्स को इस पे ऐसे ट्रांसफर कर देना, करेक्ट, और एरो क्या देना है इस, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, wheel over position, और ये वाला लाइन क्या हो गया, wheel over कितना लेना है, तो इसके लिए तुमको जो सिखाया था दैट टी, तो कैलकुलेशन जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या क्या दिखाना, व्हील ओवर पोजीशन का डिस्टेंस टी,
वन व्हील ओवर, एक व्हील ओवर पोजीशन मार्क करना है, व्हील ओवर लाइन और व्हील ओवर एक कम से कम पूरा पैसेज में सब में नहीं मार्क करना है जहां पे 60 टर्न है। यू अंडरस्टूड? क्लियर? बिकॉज लेट बी यू नो यू हैव अ वेरी क्लोज shallow here, so you have to be careful. Understood? So in this case, what was this one? T is equals to R into 1 minus cos theta, correct, plus f sin theta. जो आप बोर्ड में लिख रहे हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखेगा एग्जाम में. What is R? R is planned radius of turn. Planned का spelling double N. Planned radius of turn. Correct. Theta is the alteration, force alteration value. Force change value, force change in degrees और force change. तो कितना force change कर रहा है? Going from 280 to 350, sorry 350 270 to कितना ये वाला force? 350 80 degrees, correct? 80 डिग्री ऑल्टर कर रहा है ना? Yes sir. So in this case, this will be 80 degree. 2 star wood, 2 port, 2 star wood. ठीक है? और F is advance from, you can write down from ships maneuvering data. क्या लिखेगा? Maneuvering data for different laden conditions. ठीक है? और कुछ बचता है वेरिएबल बस. सो टी कैलकुलेट करेगा. टी ये जो शिफ्ट किया कितना शिफ्ट करना है? इक्वल टू टी वैल्यू. कोई पूछा ना? वहां पे उतना टाइम नहीं है टी कैलकुलेट करना. यू राइट द फॉर्मूला एंड यू राइट दिस डिटेल्स. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट. यू अंडरस्टूड? करेक्ट. यहाँ पे तुम लिखना व्हील ओवर लाइन, व्हील ओवर पोजीशन टू बी मार्क्ड. Wheel over position or wheel over line to be marked for all sub turns, for all legs, for critical turns, for sharp or critical turns, for sharp turns or critical turns, for critical turns. ज्यादा बॉक डाउन नहीं होना. ओके. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन फॉर मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड, एमडीआर कैलकुलेशन. तो इसके लिए क्या आएगा? फर्स्ट स्क्वाट, open waters and confined waters. So open का क्या फॉर्मूला है ब्रो? स्क्वाट इक्वल्स टू, बोलो, hey, तुम इधर ध्यान दो, CV इंटू वी स्क्वायर. ओपन में ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. ठीक है? तो कम करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को बढ़ाना है और इसमें क्या करना है? CV इंटू वी स्क्वायर बाई. ठीक है? उसके बाद 2 क्या है? ड्राफ्ट मैक्सिमम
dynamic draft. Maximum dynamic draft calculation. So इसमें क्या क्या कंडीशंस देना है? Squat, B, weather conditions. So increase of weather conditions, increase of draft is calculated by B by 2 sin theta. Where theta is the angle of heel. And what is B? B is the breadth of the ship. ठीक है? So squat, okay, weather conditions, increase in draft due to weather conditions, or you can say also hill, or increase in draft due to turning. इसका भी फॉर्मूला है, but छोड़ दो. So you mention squat, weather conditions, and this. So what you have? Dynamic draft third. Third will be your dynamic draft. Equals to draft, static draft. That is draft at when she is not making way through water. Static draft plus corrections. Corrections of draft. Due to various factors. Clear? Fourth, minimum depth required calculation. So minimum depth required is equals to maximum dynamic draft after all corrections of static draft plus UKC as per UKC policy. समझ में आया क्या बोला? क्लियर? ये सब आ गया इसमें? ओके. Whenever you start with the passage plan, first thing you start with the definition, reference, bridge, procedure, guide, edition, 6. ठीक है? First, define passage plan, comprehensive study. First, 1. Second, A. Second क्या लिखेगा? Parts of passage plan or components of passage plan. इसका definition. So what are the components? Number 1, appraisal. That is collection of all informations related to your passage. Number 2, planning. Number 3, execution. Number 4, monitoring. इसका डेफिनेशन लिखना होगा. नंबर 3, C, important NP publications.
सब दिया हुआ है, ब्रीच प्रोसीजर, रेफरेंस चैप्टर 3, चैप्टर 3, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट नोटिस का लिस्ट बना देना, सबका जितना हो सके बना देना, टाइम परमिटिंग। डी, जल्दी बैठ जा। वे पॉइंट लिस्ट। अरे वहां मत बैठ, उस साइड बैठा था। वे पॉइंट लिस्ट, वे पॉइंट लिस्ट में क्या बनाना है, कितना टाइम लिया बाय वॉच, यू सी। अब तक 25 मिनट जा चुका है। कॉपी में, चार्ट में ये दिखना चाहिए, कॉपी में ये सब दिखना चाहिए। चार्ट में, कॉपी में इसको मत बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बनाया नहीं बनाया कॉपी में। चार्ट खोल के देखते हैं सर। हाँ देखते हैं, ग्रीन चार्ट हटे हुए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इज योर वे पॉइंट नंबर, यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। सो वे पॉइंट नंबर 1 WP 01, WP 02, कितना वे पॉइंट है टोटल? 5। WP 03, WP 04 और WP 05। ओके, लैटिट्यूड बोलो। फर्स्ट लैटिट्यूड कितना है बोलो, पढ़ता जाओ। 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री 00 मिनट्स नॉर्थ, और 100 डिग्री 100 डिग्री 00 मिनट्स। उसके बाद 51 डिग्री नॉर्थ, 51 डिग्री नॉर्थ, 191 091 1 डिग्री 00 मिनट्स ईस्ट। उसके बाद 52 नॉर्थ, 52 डिग्री नॉर्थ, 194 सॉरी 094 094 डिग्री ईस्ट। 00.00 ईस्ट। उसके बाद 52 नॉर्थ, 52 नॉर्थ, 091 ईस्ट। 091 डिग्री 00 मिनट्स ईस्ट। उसके बाद 56 डिग्री नॉर्थ, 090 30 मिनट्स। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया तुम्हारा। अब यहाँ आएगा ट्रू कोर्स, और यहाँ आएगा डिस्टेंस। व्हाट इज द ट्रू कोर्स बिटवीन दिस एंड दिस? 300 Course between this and this? 280 Course between this and this? 370 Course between this and this? 350 Okay, distance? पहले वाले में अगर 100 दूसरे में 120 और 120 50 50 oh, DTG. So at this point, what is the DTG? 390 दिख रहा है कैसे लिख रहा है? तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा इस पॉइंट पे? यहाँ पे -120 170 -120 50 ठीक है। So distance DTG, and that's it. No more details. No transit speed, no nothing. वो सब जांच होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पैसेज। बस खत्म। बस, और ज्यादा मार्क करें दूसरा कुछ नहीं बना पाएगा, फिर कल पैसेज प्लान नहीं बनेगा। लास्ट में बनाया इतना में नंबर कितना दोगे? इसमें से पूरा 30 में 30। सब लोग देते हैं ना सर, ऐसा नहीं किसी हमको सबका नहीं पता।
बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाना है खाली, ठीक है। सो यू मेक कोर्स एंड स्पीड डिस्टेंस। अच्छा, और इम्पोर्टेंट कंटिजेंसी प्लान। हाँ, एक और बनाना है कंटिजेंसी एंकरेज। इधर है कॉइन है तुम लोग का पास? हाँ सर, सिक्के हैं ना। अरे कॉइन सर दे रहे, सिक्के दे रहे अरे हैं सर। अरे किसी ने सर 10 रुपए सिक्का दो जल्दी। बैग तो पीछे रखवा दिया तो जाके रख भी दिया। ठीक है, तू ये करेक्ट कंटिजेंसी एंकरेज। बैग ने रखा तो मुंह पे मारो सर अवार्ड This is contingency anchorage, ठीक है। Okay, now in case they say higher latitudes, please mention. For example, higher latitudes. बोलो इसका चेकलिस्ट क्या है? हायर लैटिट्यूड्स का गेल फोर्स, हायर लैटिट्यूड्स का गेल फोर्स। देखो नेवी वाला चेकलिस्ट क्या है? NAV 11 नहीं, as per breach procedure, not your company procedure. As per breach procedure, not your company procedure. देखो क्या है? बोलो। हाँ, ये कॉपी में लिखेंगे, चार्ट में रहेगा। सब जो हम लिखा सब कॉपी में रहेगा, खाली ये चार्ट में रहेगा। दिस पोर्शन विल बी ऑन चार्ट। यहाँ से लेके दिस हैज टू बी ड्रॉन ऑन चार्ट। पोजीशन ये सब ऑपरेशन वगैरह सब लिखने के बाद लिखेंगे या पहले लिखेंगे? जब जो लिखना है लिखो, कॉपी और चार्ट में जो लिखना है लिखो। दिस हैज टू बी ड्रॉन ऑन चार्ट। चेकलिस्ट नंबर है सर C2.14। फ्रॉम हियर टू हियर, सही है, गलत है। फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी टू बी ड्रॉन ऑन चार्ट। इसका एक बना दे थोड़ा अच्छे तरीके से। आज करेंगे आफ्टर टू ड्रॉन ऑन ना कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं, ये कंपनी का तो दिया है ना। यहाँ से यहाँ तक देख लिया। टू बी ड्रॉन ऑन चार्ट। बोलो हाई लैटिट्यूड गेल फोर्स का क्या है? C2.14। क्या लिखा हुआ? C2.14। 14 C2.14। C2.14। प्लीज मेंशन। मेन इंजन फेलियर, इंजन फेलियर। तो सर सिर्फ चेकलिस्ट नंबर डालना है ना? हाँ, इंजन फेलियर कंप्लाई विथ चेकलिस्ट। इंजन फेलियर, इंजन फेलियर, मेन इंजन फेलियर। सर C3.1 इंजन फेलियर। C3.1 C3.1। ओके, मेन इंजन फेलियर। ओके, नेविगेशनल चेकलिस्ट बोलो। नेविगेशन इन कोस्टल रीजन्स। नेविगेशन इन कोस्टल रीजन्स। नेविगेशन चेकलिस्ट है।
taking over navigational was navigation in coastal regions number. This is सर आप नाम डाल दो हम लोग चेकलिस्ट खोज लेंगे. number 1, number 2, number 3 is taking over navigational watch. अगर चेकलिस्ट नंबर नहीं याद है खाली लिख देना taking over navigational watch. Navigation in coastal water तो C2.10. C2.10 taking over navigational watch at sea. क्या है इसका? देखना मिल एक इंसर्ट किया इसको, ये कोऑर्डिनेट्स है, so you can mark this as nav area warning. Nav area सर टेकिंग ओवर वॉच का फायरिंग प्रैक्टिस B12 फायरिंग at sea B12 हाँ B12 फायरिंग प्रैक्टिस है ये, ठीक है. सो एक इंसर्ट कर देना ये, और एक यहाँ पे एक और इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना. You can write down nav area warning stroke navtex warning. Okay. सीधा नैप वार्निंग डाल देते हैं. Now you're suppose you can just take this is how much 50 miles, so 6 miles छोड़ दो पहले pilot station से. 6 miles छोड़ के यहाँ पे तुम लिख देना 6 miles छोड़ के थोड़ा और 8 miles पे ऐसे दाग कर देना. यहाँ पे लिखना स्टैंड बाय इंजन, और उसका 1 घंटे पहले कॉल मास्टर हाँ कॉल मास्टर एंड 1 hour नोटिस को कॉल मास्टर एंड 1 hour नोटिस टू 1 hour नोटिस टू इंजन, ठीक है. और यहाँ पे क्या करना है, स्टीयरिंग गियर यहाँ पे ये सब जगह पे स्टीयरिंग गियर वगैरह लिख देना. स्टीयरिंग गियर चेक, प्री अराइवल चेकलिस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर देना. यहाँ पे ऐसे करके समझे, यहाँ पे क्या है लिख देना प्री अराइवल चेकलिस्ट. क्या बोलेगा, प्री अराइवल चेकलिस्ट. और यहाँ पे क्या करना है, इस पोजीशन पे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिख देना. यहाँ पे यहाँ लिखेगा, यहाँ पे जो है एक इंफॉर्मेशन लिख देना, नोट, अराइवल नोट. अराइवल नोट में क्या है, यहाँ पे अराइवल नोट में क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट पायलट स्टेशन पास ETA, ठीक है. ETA एंड अदर इंफॉर्मेशन. अब ये दोबारा चार्ट फ्री है अदर इन्फो, बस ETA एंड अदर इंफॉर्मेशन. कॉन्टैक्ट पोर्ट कंट्रोल, बस एनफ, और कुछ नहीं. बहुत हो गया, इससे ज्यादा लिखे तो चलेगा. सर अबाउट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सर. कोस्टल पॉइंट पे अवार्ड पॉइंट क्या रही हो, पायलट में क्या है साहब, पूरा तुम्हारा चार्ट खुला हुआ वहाँ पे. कहीं से चैनल के अंदर if you want you can mark after standby, थोड़ा क्लोज जाकर देख लो कहाँ पे अवॉइड पॉइंट अब चेक कर देता है. बड़ा में मार्क कर दो, उसमें छोड़ दो, कॉपी में मार्क कर देना अवॉइड पॉइंट. सो अवॉइड पॉइंट इज व्हाट, सर ग्रीन पेंसिल उधर ही मार्क जहाँ वही डॉट मार से स्टैंड बाय. अवॉइड पॉइंट मतलब सपोज ये जो पायलट स्टेशन है यहाँ पे सपोज ऐसे है,
ठीक है, ये is a land. You understood? There is a land. You can say there is a leading light. There is a leading light. You understood? So after this point, you cannot trust. Point of no return. What point is that point? Before that point, you can turn with your own resources. उसके बाद between award point to no return, you have to take assistance, or you have to do not between award point to no return. You can turn, but it will not be a normal turn. You have to use all your seamanship's, use of, because snubbing of anchors. Maybe you have to drop anchor, provided you are permitted to drop anchor. You can turn or execute short turn. It will be a critical turn, taking the mooring equipment into consideration. Slow down, drop anchor, wait for time, swing like that, or short turn. But after no return, you cannot turn even with your mooring equipment and all those. You need an assistance. Either you continue with that passage, or if you want to turn back, you need a turn. Understood? So you can mark award point. अवार्ड पॉइंट आएगा फिर हाँ, एसबी स्टैंड बाय इंजन के बाद करेक्ट. ऐसा जगह पे जहाँ पे दोनों मर्ज हो जाता है, अवार्ड पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ देयर इज नो अवार्ड पॉइंट, वही अवार्ड पॉइंट एंड नो रिटर्न. तो क्रिटिकल मैनूवरिंग. ठीक है, इफ यू वांट टू टर्न, so this will be no return, point of no return. ठीक है, or you can say this as award point. Award. ठीक है, जगह ही नहीं है, इतना कर दिया बहुत है. हाँ, कितना टाइम लगा बाय वॉच? 45 minutes. 30 minutes. हमें तो और लगेगा सर, क्योंकि सब कुछ लिखना